So hello friends, I'm your educator Ms. Kaur at Study Bar, the best learning platform. So today in this video, we are again going to continue with our chapter number 1 of class 9th of biology, which is cell, okay, of biology. And we have learned many things before also about cell. We have discussed many things. Lot of things means many things, lot of things we have discussed. So to get that information, the people who are seeing this video, to get the information for that videos, I'm giving the links above, okay. So now let's move further. Now let's see what topics we will be studying in this video. The first is the prokaryotes and eukaryotes. What are they? What are prokaryotic organisms? What are eukaryotic organisms? And we will do one activity to understand the main component of the cell. Which main component? That is cytoplasm. कौन सा main component के बारे में समझेंगे? That is cytoplasm. Okay. और इससे पहले हमने दो main components के बारे में हम पढ़ चुके हैं. They were plasma membrane and nucleus. Okay. तो ये लास्ट कंपोनेंट भी है और थर्ड कंपोनेंट है जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म. So hello friends, I welcome to you our channel which is Study Bar, the best learning platform. So firstly I recommend you to please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest notifications, and also like and share this video so that more people can get knowledge from the video, and also comment if you have any doubt. So let's start our class with a positive thought. The positive thought is what? Education is not the learning of facts but the training of mind to think. It's said by Albert Einstein. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एडुकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. एडुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लर्निंग है जो हमारे माइंड की ट्रेनिंग होती है सोचने की. The training of mind to think is education. Education is not the learning of facts. Okay. So now let's start our topic. Our topic is prokaryotes and eukaryotes. We know that viruses do not have. अभी हम बात करते हैं prokaryotes और eukaryotes के बारे में. We know that viruses do not have cellular structure. अभी ये तो हमें पता है कि जो viruses होते हैं उनका कोई cellular structure नहीं होता है ना, उनमें कोई सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती. दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर. और इसी सेलुलर स्ट्रक्चर पे बेस होते दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, दो तरह के लिविंग बींग्स हैं. दे आर द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. और इन दोनों में वायरसेस किसी भी कैटेगरी में नहीं आते बिकॉज दे आर नॉन लिविंग. ठीक है. Let's study about these two categories in detail. Now firstly we will be studying about the prokaryotic organisms. The prokaryotes, the word prokaryotes splits into two words. अभी जो कहते हैं जो word है prokaryote वो दो words में split करता है, that is pro and karyote. Let's see. जो prokaryote word है ना, जो ये वर्ड है प्रोकैरियोट, ये दो वर्ड्स में स्प्लिट करता है. द फर्स्ट इज द प्रो, द सेकंड इज द कैरियोट. ओके. एंड द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव and karyote means nucleus, means primitive nucleus. So what does this mean, primitive nucleus? What does primitive nucleus means actually? So let's see what does this primitive nucleus means. Pro means primitive and karyote means nucleus. So primitive nucleus, membrane bound organelles are absent. अभी इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता. प्रिमिटिव मतलब होता है प्राइमरी, छोटा, तो मीन्स न्यूक्लियस अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं होता इसमें. ठीक है. अभी यहाँ से और ज़्यादा क्लियर होगा. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. कहते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो होती ही नहीं है इसमें.
ओनली वन ऑर्गेनेली होती है, दैट इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाले नहीं होते. दे आर ऑफ 70s टाइप्स व्हिच विल बी डिस्कसिंग फर्दर. अभी आगे है न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड द न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. अभी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इज क्वाइट एब्सेंट होता है मीन्स ना होने के बराबर ही होता है. बिकॉज न्यूक्लियस अच्छी तरह से डिफाइन नहीं होता, उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती. और न्यूक्लियर रीजन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड. ओके, न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. नेक्स्ट इज दे हैव राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर स्मॉलर एज दे आर ऑफ टाइप 70s. अभी राइबोसोम्स होते हैं उनमें, बट राइबोसोम्स छोटे होते हैं. क्यों छोटे होते हैं? बिकॉज दे आर ऑफ द टाइप 70s. ओके, वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. सिर्फ वन क्रोमोसोम होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं. देर इज ओनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट देयर साइज इज ऑल्सो स्मॉलर 1 to 10. उनका साइज भी छोटा होता है. देयर साइज इज ऑल्सो स्मॉलर. और ये जो यहाँ पे यूनिट लिखी गई है, ये एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है विच इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ द organisms. Okay, next is mitosis does not happen. Mitosis. So now mitosis, what is mitosis? means जहाँ पे सेल की डिवीजन हो टू डॉटर सेल में, जिनमें सेम टाइप के सेम ही क्रोमोसोम्स हों. ठीक है, माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल इन टू डॉटर सेल्स ईच हैविंग द सेम काइंड और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं, दे आर bacteria and the cyanobacteria, we can say blue green algae. So these are some examples of prokaryotes. So prokaryotes क्या है? एक ऐसा word है जो two words में split होता है, that are pro and karyote. And pro means here primitive and karyote means nucleus. तो primitive nucleus, यहाँ तक क्लियर हुआ. आगे इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, मीन्स कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. न्यूक्लियस क्वाइट एब्सेंट होता है, मीन्स ना के बराबर ही होता है. होता तो है बट इतना वेल डिफाइंड या इतना अच्छा नहीं होता जितना यूकैरियोटिक्स में होता है. और जो न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड. इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड. इनमें राइबोसोम्स होते हैं, बट राइबोसोम्स भी यूकैरियोटिक्स से छोटे होते हैं बिकॉज दे आर ऑफ द टाइप 70s. अभी इन राइबोसोम्स की टू टाइप्स होती हैं. दे हैव टू टाइप्स विच आर, फर्स्ट इज द 70s एंड द सेकेंड वन इज द 80s. ठीक है, 80s 70s से बड़ी होती है, दैट इज दे आर स्मॉलर. तो एक डिफरेंस राइबोसोम्स में भी पाया जाता है. आगे सिर्फ एक क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, माइटोसिस होती नहीं है, साइज बहुत छोटा होता है. और जो कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, दे आर बैक्टीरिया एंड वी कैन से द ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, सो हियर यूकैरियोट्स. अभी बात आती है यूकैरियोट्स की. यूकैरियोट इज अ वर्ड ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. ये भी एक ऐसा वर्ड है यूकैरियोट भी जो खुद भी आगे जाके टू वर्ड्स में स्प्लिट होता है. यूकैरियोट, ठीक है, ये भी आगे जाके टू वर्ड्स में स्प्लिट होता है, दैट इज वेट that is U and karyote meaning true nucleus. So ये दो वर्ड्स में स्प्लिट होता है, that is U and karyote. जैसे वो pro and karyote में स्प्लिट हो रहा था, it is splitting into true U and karyote which means true nucleus. So आगे बढ़ते हैं. These have membrane bound organelles. जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें membrane bound organelles प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, they have 80s type ribosomes that are larger in size than the 70s ribosome. इनमें 80s क्या होते हैं? 80s राइबोसोम्स होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं. किनसे? 70s राइबोसोम्स में. और जो 70s राइबोसोम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट वेयर? दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स.
two or more chromosomes are present. I have written absent, sorry for that. दो या दो से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, माइटोसिस होती है जब सेल डिवीजन प्लेस लेती है सेल में, मींस प्रेजेंट होती है सेल में या प्लेस हो रही होती है, तो माइटोसिस उस समय होती है सेल में. नेक्स्ट इज देयर साइज इज बिगर विच इज 5 to 10 डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच आई हैव डिफाइंड यू लेटर ऑन ऑल्सो कि ये जो यूनिट यहाँ पे मैंने लिखी है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच इज यूज टू मेजर द साइज और सी द साइज. ओके, न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड होता है, मीन्स अच्छी तरह से डिफाइंड होता है. एंड if we talk about some examples, they are very common in our daily life, which are cats, dogs, humans, etc. जो हम टाइप्स की बात करें वो इजीली हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. दे आर कैट्स, डॉग्स, ह्यूमंस एटसेट्रा. तो यूकैरियोट्स भी समझ आए, दो वर्ड्स का बना हुआ है, यू एंड कैरियोट. यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, एंड दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. और उसके बाद एटीएस राइबोसोम्स होते हैं. उसके बाद दो या दो से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं. माइटोसिस होती है जब सेल डिवीजन टेक प्लेस लेती है सेल में. When cell division takes place, mitosis also happens. Their size is also bigger, which is 5 to 10. And if we talk about the nuclear region is well defined. And if we talk about some examples, they are cats, dogs, which we can see in our daily life. Even we human beings are also eukaryotes. Okay, so now let's study about the difference between these two, prokaryotics and eukaryotics. The first is the matter of size. The size is smaller in the prokaryotics, whereas the size is bigger in the eukaryotics. The nucleus region is not well defined and is called न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियर रीजन अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड. और जो यूकैरियोट्स हैं, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन. दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन and they have hereditary material, and it is also covered by the nuclear envelope. Okay, they have hereditary material also. What does hereditary material helps to? जो hereditary material होता है उससे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ जीन्स जाते हैं. दैट इज वी से that the child is like his father or her father. Okay, that is only possible due to the hereditary information which is being carried through genes. आगे बात आती है क्रोमोसोम्स की. क्रोमोसोम सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. आगे दो या दो से ज़्यादा क्रोमोसोम्स किनमें प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में. आगे आता है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में एंड इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स. आगे बात आती है सेल ऑर्गेनेलिस. सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं किनमें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में. आगे अभी अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. माइटोसिस नहीं होती, माइटोसिस इज एब्सेंट, एंड इन यूकैरियोटिक्स माइटोसिस इज प्रेजेंट. Examples of prokaryotes are cyanobacteria and blue-green algae, and some examples which we can see commonly in our daily life of eukaryotes are cats, dogs, and we human beings. Okay. So now we will do one activity on cheek cells. That is, the activity is, the materials required for your activity is ice cream spoon, or you can say pick up a toothpick. You have to take a glass slide, one needle, one cover slip, and then you need water or dilute glycerin, a dropper, then you need a methylene blue solution, and you need a blotting paper and one microscope. Microscope is necessary in each and every activity of biology. So let's see the working, what we need to do with all these materials.
The first is scrape a small piece of membrane from inside cheek with the help of toothpick और आइसक्रीम स्टिक. अभी क्या कह रहे हैं, हमने क्या लेना है अपने चीक में से क्या करना है, एक स्क्रैप उतारनी है, स्क्रैप उतारनी है, मेम्ब्रेनियस वी कैन से बाउंड, ठीक है, उसकी स्क्रैप करनी है एक लेयर, और क्या करना है उसे टूथपिक से स्क्रैप करना है. और फर्स्टली यू कैन रिंस योर माउथ ताकि कुछ फूड पार्टिकल्स ना हो, ठीक है. You can rinse your mouth so that the food particles should not come out with that. Mount the membrane scraping with a drop or glycerin. अभी क्या करना है, जो भी आपने वो लेयर उतारी है, मेम्ब्रेनियस लेयर उतारी है, उसको क्या करो, वाटर की ड्रॉप उसके ऊपर डाल दो, या यू कैन से द डाइल्यूट ग्लिसरीन सॉल्यूशन यू कैन पुट ऑन इट. आगे बात आती है स्प्रेड इट विद अ नीडल. अभी क्या करना है, हमने इसे नीडल के साथ स्प्रेड आउट करना है. नाउ पुट अ कवर स्लिप जेंटली ओवर द मेम्ब्रेन एंड अवॉइड एयर बबल्स. अभी हमने क्या करना है, कवर स्लिप ऊपर रख देनी है. हमने ग्लास स्लाइड ली, वी हैव टेकन अ ग्लास स्लाइड. मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक जो भी मैंने लेयर उतारी उससे वो उसके ऊपर रख दी. उसके बाद मैंने उसके ऊपर वाटर डाल दिया, और वी कैन से द डाइल्यूट ग्लिसरीन सॉल्यूशन व्हिच वी टुक. और डाइल्यूट ग्लिसरीन सॉल्यूशन डालने के बाद मैंने क्या किया, कवर स्लिप से उसे कवर कर दिया. कवर स्लिप से कवर करने के समय आपको ये पूरा ध्यान रखना होगा कि उसमें एयर बबल्स ना फॉर्म हो, ठीक है जी. रिप्लेस द स्टेन बाय पोरिंग 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ड्रॉप सॉकिंग स्टेन फ्रॉम अनदर स्लाइड. अभी क्या करना है, हमें वाटर ड्रॉप डालनी है, ठीक है, और ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. आगे हमने क्या करना है, इसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है. वी हैव टू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. अभी अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अ नंबर ऑफ पॉलीगोनल फ्लैट सेल्स. पॉलीगोनल फ्लैट सेल्स दिखेंगे आपको कुछ उस स्क्रैप्ड लेयर में, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ आपको सेल्स वहाँ पे दिखाई देंगे. And in this cell you can only see some dot like structures, or you can see a big ball like structure which is present in these polygonal flat structures. इन स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो यहाँ पे लेबलिंग की हुई है ना, एक तो आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वेट, one is plasma membrane, or these blues, dark blue is nucleus and the light blue one in this polygonal structures is the cytoplasm. okay, तो ऑब्जर्वेशन क्या रही कि हमें 3 मेन कंपोनेंट्स अच्छी तरह से दिखे. they were the plasma membrane, the nucleus and the cytoplasm, and we saw some dot like structures which were the cell organelles. okay, so let's move further. Now let's study about the third most important, or the third main component of the cell, which is cytoplasm. So cytoplasm, the mass of the cell inner to the plasma membrane and excluding nucleus is called cytoplasm. अभी cytoplasm क्या है, इनर टू सेल, अंदर सेल के इनर टू सेल, ठीक है, सेल के अंदर जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, सेल के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा न्यूक्लियस को छोड़ के, मानो ये आपका सेल है और ये न्यूक्लियस है, और इसको छोड़ के और ये सेल की ये लेयर को छोड़ के जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे, ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म. ओके, इट इज साइटोप्लाज्म. क्लियर. नेक्स्ट आता है व्हेन द सेल इज स्मॉल द साइटोप्लाज्म. जब सेल कहते छोटा होता है ना, तब तो क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, दिस साइटोप्लाज्म फिल्स इन बिटवीन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो ये साइटोप्लाज्म, जब ये सेल छोटा होता है तब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो स्पेसेस न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होती है उनको भी फिल आउट कर देता है. बट व्हेन द सेल ग्रोज अप एंड इट्स साइज इंक्रीजेस, तो इसमें क्या होती है, छोटी छोटी कैविटीज प्रेजेंट होने लग जाती है. मीन्स ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें छोटे छोटे, जब ये इसका साइज इंक्रीज हो गया तब इसमें क्या आ गई, छोटी छोटी कैविटीज प्रोड्यूस आउट होने लगी. और वो कैविटीज कौन सी हैं, वैक्यूल्स. और वैक्यूल्स क्या हैं, what are vacuoles? We have not studied, but these are called the storage sacs of the cell.
नाउ जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ इनसाइड 2 पार्ट्स होते हैं. इट हैज 2 parts inside it. The first one is the cytosol and the second one is the cell organelle. साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोसोल क्या होता है? एक फ्लूइड पार्ट होता है. किसका किसका होता है फ्लूइड पार्ट? साइटोप्लाज्म का. साइटोप्लाज्म का एक फ्लूइड पार्ट होता है साइटोसोल. एंड द सेकंड पार्ट विच वी डिस्कस वाज द सेल ऑर्गेनेली. सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं, लाइक इट इज अ साइटोप्लाज्म. इसमें जो ये आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, मैंने आपको पहले भी बताया, देवर सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में, और वो एक पर्टिकुलर वर्क करने में क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट राइबोसोम्स. राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है. वो क्या करती है? वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है. तो वो प्रोटीन बनाने में ही हेल्प करेगी. इट विल ओनली हेल्प इन प्रोटीन मेकिंग. सो इट इज स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन. अभी आगे अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम्स की, इट इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेली. तो लाइसोसोम क्या करेंगे? दीज आर डाइजेस्टिव बैग्स. ठीक है, ये मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं सेल के. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल स्क्वेंजर्स. सेल को खा जाते हैं जब सेल में कोई रिपेयरिंग ना हो रही हो जाए, या सेल डेड होने वाला हो. जब सेल मर जाता है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? खुद ही सेल को खा जाते हैं. तो इट इज ऑल्सो सेल ऑर्गेनेली विच इज स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन. ओके, क्लियर टिल है? टू कीप द वर्क सेपरेट. काम को सेपरेट रखने के लिए जो हर एक सेल ऑर्गेनेली होती है, हर एक सेल ऑर्गेनेली वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है. अभी अगर मेम्ब्रेन की हम बात करें, मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? What do we call membrane in Hindi? In Hindi language, what do we call membrane? It's a question to you. You have to answer it in the comment section. Okay? The question is, what do we call membrane in the Hindi language? Okay? So सारी जो भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए वो क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. उनके बाहर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है. ओके, तो साइटोप्लाज्म क्लियर हुआ. नेक्स्ट बात करते हैं हम साइटोसोल की. व्हाट इज साइटोसोल? इट इज विस्कस एंड नियरली होमोजेनियस. अभी विस्कस का मतलब क्या होता है? चिपचिपा. द लिक्विड विच इज विस्कस मीन्स जो चिपचिपा सा लिक्विड हो. और नियरली होमोजीनियस भी होता है, मीन्स इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट विच आर water, ions, proteins, vitamins and the carbohydrates and many more. इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे components होते हैं इस viscous liquid में, which is cytosol. It contains water, it contains ions, it contains proteins, it contains vitamins, it contains carbohydrates and many things more. जितनी भी metabolic reactions होती हैं सेल की, वो कहाँ पे होती हैं? दे टेक प्लेस इन साइटोसोल. ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो साइटोसोल में होती हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट साइटोसोल इज इन परपेचुअल मोशन. साइटोसोल इज इन परपेचुअल मोशन. परपेचुअल मोशन कौन सा होता है? मीन्स एक ऐसा मोशन, वी कैन टॉक अबाउट द मोशन विच नेवर स्टॉप्स. ऐसा मोशन जो धीरे 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 चलता ही रहे. ठीक है, द मोशन विच नेवर स्टॉप्स और स्टॉप्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. एक ऐसा मोशन जो या तो रुकता ही ना हो या बहुत समय के बाद रुकता हो. दैट मोशन इफ वी टॉक अबाउट is called the perpetual motion which we can see easily in the cytosol. सेल ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ ली हैं. सेल ऑर्गेनेलीज आर सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स. ओके, सो आज हम सिर्फ साइटोप्लाज्म, यही हमारे 3 टॉपिक्स थे, साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. और उसके बाद आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक of cell organelles, cell inclusions, all about that. So I think it's enough for today. So bye bye. We'll see you in the next video. Bye bye.